کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازا کے ملبے میں 83 لاپتہ افراد کی تلاش، 26 میں سے 20 میتوں کی شناخت کر لی گئی۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ ڈی این اے کے نمونے جمع کرانے لگے۔ انتظامیہ نے آج ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کی امید ظاہر کر دی۔ پوری عمارت کے منہدم ہونے کا بھی خدشہ۔ پکڑے گئے نا، ہم نے ریکوری کی ہے اور ان کو پکڑنے کے لیے کوشش کی، اور ان کو ہمیں شہریوں کو بھی احساس کرنا چاہیے ایسے لوگ متاثرین کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں۔ جو لوگ یہاں شہید ہوئے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ ابھی 2 لوگ۔ سانحہ گل پلازا میں آڑ میں 9 سرباز سرگرم، جعلی قواعد جمع کرا کے امداد وصول کرنے کی کوشش کرنے والے 2 افراد گرفتار، ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ نے تصدیق کر دی۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلہ ثابت ہوا ہے۔ سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں۔ کراچی میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں پہ بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی ایک افیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں بھی سانحہ گل پلازا کی باز گشت۔ خواجہ آصف نے موجودہ ڈھانچے کے ساتھ کراچی کو کنٹرول کرنا ناممکن قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے 18ویں ترمیم ڈھکوسلہ اور مؤثر بلدیاتی انتخابات ناگزیر قرار دے دیے۔ یہاں پر سر اس پہ اگر سیاست کر کے صوبوں تک 18ویں ترمیم تک سلیبس تک جائیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، اور یہ میں بات کروں گی اس لیے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ ایک ملک تھا سر۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کے دل کی کیا کیا بھڑاس سامنے آ گئی۔ بھائی صوبے کے مالک عوام ہیں۔ سانحہ پر سیاست کر کے 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ سندھ تو ایک ریاست تھا۔ صدیوں پہلے نعرہ لگا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں۔ شہلا رضا کا وزیر دفاع کو جواب، گوشت نوچنے والے گدھ 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر حکومت کا حصہ بننے والوں نے بلدیاتی قوانین کیوں منظور نہ کروائے؟ آپ نے مہاجر قوم کو 100 سال پیچھے دھکیل دیا۔ قادر پٹیل نے سانحہ بلدیہ اور ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار MQM کو قرار دے دیا۔ متحدہ کو کراچی پر دعویٰ نہ کرنے کا مشورہ۔ سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے گل پلازا سانحہ کو سندھ میں بیڈ گورننس کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ وفاق کی جانب سے کسی بھی نمائندے کا سانحہ پر کراچی نہ پہنچنے کا بھی شکوہ۔ گل پلازا کی آگ کراچی والوں کے دل پر لگی، یہ آگ دلوں سے باہر نکل کر جگہ جگہ لگے گی۔ فاروق ستار نے شارع فیصل پر 10 لاکھ افراد کے دھرنے کی دھمکی دے دی۔ کوئٹہ کے لیاقت بازار میں واقع موبائل اور لیپ ٹاپ مارکیٹ میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آگ بجھانے کی کوشش کے دوران 2 فائر فائٹرز کی حالت غیر، 150 سے زائد دکانوں میں رکھا کروڑوں روپے کا سامان جل کر راکھ۔ دن رات وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے تھے۔ اس دن پر ہم نے ان کو ایک سبق آموز ان کو ہم نے مزہ چکھایا، لیکن اس کے بعد میٹنگز ہوئیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ افغانستان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا وہ امن چاہتا ہے یا نہیں۔ شہباز شریف کا طالبان رجیم کو 2 ٹوک پیغام، خارجیوں کے مکمل خاتمے تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم۔ افغان حکومتوں نے پاکستان کی میزبانی کی کوئی قدر نہیں کی، بھلائی کے جواب میں افغان حکومت کا رویہ تکلیف دہ ہے۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا، صوبے میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کی رہائی غلطی قرار دے دی۔ خلا وطنی کے دور میں ایک میثاق جمہوریت بھی سائن کیا گیا اور واپس آ کر تلخیوں کو بلایا گیا، مگر وہ جو تیسری قوت تیار ہوئی، اسی تیسری قوت نے آج جتنے معاشرے کے اندر مسائل ہیں، تقسیم ہے، نفرت ہے، شدت پسندی ہے، اس کو فروغ دیا۔ تیسری قوت نے ہمیشہ انتشار پھیلایا، بات چیت کی پیشکش ہمیشہ رد کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قلم اور کیمرے سے کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دینے کا اعلان، تقریب سے خطاب میں ہر ایک کو جواب دہ بنانے کا عزم۔ The parliamentary leaders
present in the House to assist the leader of the opposition on his seat. चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। बानी ने सेनेटर बनाया, उनका वफादार साथी हूँ। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का सियासी कैदियों की आम माफ़ी और रिहाई का मुतालबा। सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल बानी पीटीआई की रिहाई करार। मुकदमात ना चलाने से अदालती निज़ाम से अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका। अपोजिशन लीडर का दावा। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वोट के एहतराम और इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। पार्लियामान में संजीदा और खुशगवार माहौल बरकरार रखा जाए। अवाम के फैसले को माने बगैर जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मखसूस वाक़यात पर अटके रहे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सेनेट में खिताब के दौरान अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की पेशकश। असद कैसर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। पीटीआई ने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की। दहशतगर्दी नासूर, हर सूरत खात्मा होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा की कौमी असम्बली में खिताब। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जो सड़क और गली खोदी जा रही है, इंतज़ामिया के पास उसका मुकम्मल प्लान होना चाहिए। मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए। सड़क बन गई तो कोई महकमा उसे खोद नहीं सकेगा। लाहौर में मरीम नवाज का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर से खिताब। बानी पीटीआई से खानदान और वकला की मुलाकात का दिन। जेल इंतजामिया ने आज भी किसी को मिलने नहीं दिया। साबिक वजीर आजम की तीनों बहनें कारकुनों समेत मार्बल फैक्ट्री नाका पहुंची तो पुलिस ने रोक लिया। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात आईनी और कानूनी हक करार दे दी। एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से फिल वक्त कोई राबता नहीं। अगर कोई बैकडोर राबता होता है तो छुपाएंगे नहीं। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के साथ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। डेविस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मुनक़सिम दुनिया में मुकालमे की रूह की बहाली पर इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन और तरक्की के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करेंगे। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर्स के मुआहिदों पर दस्तखत। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर 47 करोड़ 50 लाख डॉलर्स खर्च होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन करार। पाक फौज के पुलिस फोर्स के साथ खड़े रहने की अज़म का आदा। बलोचिस्तान काबीना का मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करने के लिए बड़ा इक़दाम। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स की मंजूरी दे दी गई। मुश्तबा अफराद से पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश की जाएगी। अहले खाना को मुलाकात की इजाजत भी होगी। कोयटा में पुलिस का सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस के एहतजाज पर क्रैकडाउन। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से चीन एक रोल मॉडल है। ज़राई शोबे में इसके तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़राई शोबे में सरमायाकारी की तरगीब। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिंध में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गईं। सूबे में अस्पतालों और स्कूलों समेत सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने से मुतालिक फौरी हुक्म इम्तना जारी करने के इस्तेदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ऑडियो लीक से केस में साबिक वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुकदमे में मुद्दइया आसमा बुखारी की तलबी अदालत ने 21 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम ख़त्म करके नया ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। 40% से कम नंबर लेने वाले तुलबा फेल तस्वुर किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने अपने रूसी हम मनसब को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दे दी। क्रेमलिन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन तजवीज़ का जायजा लेंगे। ट्रंप का फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के बोर्ड में शामिल होने का इशारा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ की धमकी दे दी। नेटो सरबराह को डेविस में मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम लहराने का कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर कर डाला। जज़ायर डेगो गार्शिया मॉरिशस को देने के फैसले पर बरतानवी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। धमकी आमेज बयान में बरतानवी इकदाम इंतहाई अहमकाना करार दे दिया। ट्रंप के रवैये पर बरतानिया नाराज। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अमरीका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया। चीन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे से मुताल्लिक ट्रंप के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर चीन को बहाना बनाकर ज़ाती मफादात हासिल करने की कोशिश बंद करें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात को आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। गजा के बेघर फलस्तीनी मौसम सरमा की तेज हवाओं और बारिश में खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वायरल वीडियो में फलस्तीनियों के खैमे तेज हवाओं के बाइस झूलते नजर आ रहे हैं। ईरान में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक और बाजारों में रश बढ़ गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी खुल गई। सरकारी प्रेस टीवी ने मुल्क भर में सब अच्छा की नवीद सुना दी। ICC और BCCI की भारतीय मीडिया से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकियां। बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन। ढाका के इनकार पर 19 टीम्स का वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। ग्रुप 3 में शामिल तमाम 4 टीम्स को बगैर खेले बांग्लादेश मैच के पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। गोदी मीडिया का दावा। और पुरस्कार खत में मोहब्बत से जुड़े राज की कहानी। अमरीकी हॉरर फिल्म 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी।